Hello everyone, I am Dr. Milikul Sresth and today we are going to discuss last and fourth colligative property and this is osmotic pressure. इससे पहले we have already gone through the three other properties, that is elevation in the boiling point, lowering in vapor pressure and depression in freezing point. All of these properties were depending on the addition of solute in the solvent, and the vapor pressure, lowering in vapor pressure was responsible for rest of the properties like एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर से कोई मतलब नहीं है. सो दिस इज़ अ डिफरेंट वन. तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियोज़ नहीं भी देखे हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ जाएगी. Okay, so before starting this property we have to recall one process of 9th standard. We have seen this process, diffusion. Remember this diffusion. This term we are very familiar with क्योंकि हम इसे रोज एक्सपीरियंस करते हैं around us. But what is the definition of diffusion? It is the process of movement of solute particles from its higher concentration to its lower concentration. फिर से सुनते हैं. Movement of solute particles कहाँ से, जहाँ solute particles ज़्यादा हैं वहाँ से जहाँ solute particles कम है उस तरफ. For an example, when you experience the smell of the food cooked बीइंग कुकड एट योर होम, तो घर पे मम्मा क्या बना रही है उसकी स्मेल आपको कहाँ से आती है? किचन से. किचन से आपके कमरे तक हाउ इट कम्स? बिकॉज द फूड विच इज़ बीइंग कुकड देयर इट इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर फ्लेवर एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट देयर. तो इन द एरिया वेयर एवर इट इज़ बीइंग कुक्ड वहाँ पे उसका कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है नियर द यूटेंसिल. When these smell, these particles comes out in the form of vapors, they mix with the air and then they start moving from their higher concentration to the lower concentration. So it just spread around in all the directions. कब तक? जब तक कि concentration of that substance will not be same all throughout. This is called diffusion. ठीक है, we have gone through this process using a simple activity. Remember this, we have a, suppose we have a beaker which is having some water in it and I am dropping one ink drop into it, and what will happen after a certain time? This ink, these black particles of ink will start moving from their higher concentration. कहाँ है एक ज़्यादा? ink यहाँ पे है, तो these will not remain there only, they will start moving from their higher concentration to the lower concentration. तब तक जब तक कि पूरा पानी ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का नहीं हो जाता और सब तरफ कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती. दैट वाज ऑल डायरेक्शन मूवमेंट एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ये हमारा डिफ्यूजन था. देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस डिफ्यूजन. बिल्कुल इसी तरीके से वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अनदर प्रॉपर्टी, अनदर प्रोसेस which is called osmosis. तो बिल्कुल diffusion की तरह ही we have a process called osmosis. The difference is only that जहाँ diffusion में solute particles were moving, यहाँ osmosis में movement of solvent particle will take place. तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन. यानी कि पानी विल मूव, अगर पानी में कोई सोल्यूशन बनाया है तो दैट वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पानी कम है उस तरफ वाटर मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड SPM. इन शॉर्ट वी कॉल इट एज SPM. तो फिर से सुनते हैं. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड osmosis. I hope it is clear. What is osmosis? It is the movement of the solvent particles from higher concentration to its lower concentration through semi permeable membrane. अब यहाँ पे semi permeable membrane का मतलब है semi permeable. semi means half, permeable मतलब allow करना. तो semi मतलब half का मतलब है the some of the things will be allowed to move out from that membrane, but some of the things will not be allowed. तो आधी चीज़ों को this membrane allow to pass through them and आधी चीज़ें it does not allow. तो क्यों होता है ऐसा? The basic reason is voids which are present in these semi permeable membrane are very small. तो उसमें से कोई particles, crystalloids and crystals cannot move. तो क्या जाता है? केवल water is allowed to move from these semi permeable membrane.
व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? ऑल नेचुरल मेम्ब्रेन, जैसे पिग्स ब्लैडर ले लीजिए आप, पिग ब्लैडर, या फिर गोट ब्लैडर ले लीजिए आप, और पर्चमेंट पेपर, पर्चमेंट पेपर, या फिर सेलोफान स्ट्रिप, तो पर्चमेंट पेपर, सेलोफान, ये तो दोनों नेचुरल हैं ही हैं। सेलोफान स्ट्रिप क्या है? सेलुलोज को ट्रीट किया जाता है। सेलुलोज इज ट्रीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन इट इज़ कोटेड विद सम लेयर्स सो दैट इसका परमिएबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। तो ये जो है आपका सेलोफान स्ट्रिप, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल स्ट्रिप विच अप ऑफ सेलुलोज एंड ट्रीटेड विद द केमिकल्स। ये जो है पर्चमेंट पेपर, दिस इज ऑल्सो अ पेपर बट इट इज़ ऑल्सो कोटेड विद सम ऑफ द केमिकल्स, थोड़ा ट्रीटमेंट के बाद, मतलब हाफ सिंथेटिक हाफ नेचुरल इट इज़, बट केमिकली इट इज़ सेलुलोज, बोथ ऑफ देम आर सेलुलोज। तो बेसिकली ऑल द नेचुरल शीट्स या ऑल द नेचुरल मेम्ब्रेन्स वर्क एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो व्हाट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस यूजिंग अ डायग्राम। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बना रही हूँ विच विल शो द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, सो हियर वी हैव वन कंटेनर, this is semi permeable membrane. I have made the holes there, but this is not allow, these holes are not going to allow everything to pass through them. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ से वहाँ जा सकती है, वहाँ से यहाँ, जो चीज़ें जा सकती हैं वो जा सकती हैं, which are not allowed are not allowed. तो that is why it is called semi permeable membrane. semi permeable, आधा अलाउ करने वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ से वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर, लेट अस सी वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। बट अभी सिंपली आप ये देखिए, वी हैव फिल्ड इट विद द सॉल्वेंट। तो इस तरफ है हमारा सॉल्वेंट और इस तरफ है हमारा सोल्यूशन। ओके, लेट अस टेक दिस सॉल्वेंट एज वाटर एंड दिस सोल्यूशन इज सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव द कंडीशन। नाउ व्हाट विल हैपन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यू जस्ट इमेजिन क्या है ये कंडीशन, सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है, तो वेयर द सॉल्वेंट विल बी मोर, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल टेक प्लेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कब तक, जब तक कि यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट और यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट का मतलब कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड, जब तक कि ये दोनों सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, इफ़ आई वांट टू स्टॉप दिस मूवमेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूटिलाइज एन एक्सटर्नल प्रेशर। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। So, to stop the movement of the solvent from its higher concentration to lower concentration, I am going to apply some external pressure to the solution side. तो क्या होगा, ये प्रेशर विल नॉट अलाउ दिस मूवमेंट फ्रॉम दिस टू दिस साइड। ये क्या करेगा, इसको आने ही नहीं देगा, प्रेशर इधर की साइड लग रहा है, मूवमेंट इधर है, तो दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज गोइंग टू स्टॉप द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो दिस एक्सटर्नल प्रेशर विच इज required to stop the process called osmosis, this external pressure is called osmotic pressure. So listen to it again, what is osmotic pressure? The pressure which is required, या external pressure which is required to stop the process called osmosis is called osmotic pressure. And experimentally it is observed that this osmotic pressure, इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, this osmotic pressure is proportional to the concentration of the solution। मतलब जितना ज़्यादा concentration of the solution होगा उतना ही ज़्यादा osmosis होगा एंड उतना ही ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो this is directly proportional to the concentration of the solution and the temperature, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। तो this is directly proportional to concentration of the solution and the temperature। अगर मैं इसे हटाती हूँ, I will get this pi equals to CRT। यहाँ पे this R is gas constant, remember this R equals to gas constant।
ओके, व्हाट इज सी? सी इज द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं? मोल्स पर लीटर में. तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज पाई इक्वल्स टू N/V/RT. और मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? पाई V इक्वल्स NRT. ओके, तो दिस इज पाई V इक्वल्स NRT, जहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ व्हाट इज N? N इक्वल्स टू W बाई मोलर मास. W यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं? मास ऑफ द सॉल्यूट वी हैव मेड द सॉल्यूशन फ्रॉम विच. ठीक है, तो दिस इज RT. तो कांट आई कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जिसका सोल्यूशन आपने लिया है? सपोज आई हैव टेकन अ सोल्यूशन ऑफ अ पॉलीमर एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई osmotic pressure to stop the process called osmosis from the movement. तो कितना पाई लगाया है, कितना प्रेशर लगाया है या कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये अगर हमें पता लग जाता है तो वॉल्यूम वी हैव ऑलरेडी नोन, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना हमने वहाँ डिजोल्व किया था वो हमें पता है, आर इज़ द गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर हमें पता ही है. तो वी कैन कैलकुलेट कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ मेकिंग दिस सोल्यूशन. सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैथड टू फाइंड आउट या टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर्स. क्यों? क्योंकि पॉलीमर का मास ज़्यादा होता है तो कम प्रेशर लगा के हमारा काम हो जाता है. तो दिस प्रोसेस इज़ अ वेरी गुड मैथड टू find out the molar masses of the polymers. So we can calculate the molar mass of the polymers. So what is the molar mass from this equation? Molar mass equals to W upon V pi into RT. So WRT upon pi V. This is the formula. This is the formula to calculate the molar mass of the substances with which we are making this solution. तो कितने substance को मिलाने पर कितना पाई आपको लगाना पड़ता है, if you are knowing this, तो आपको पता लग जाएगा कि what is the molar mass of that substance. This is called osmotic pressure. I am telling you one more thing, one thing here again and again कि this is a very good method to find out what is the molar mass of the substance with which you have made the solution. तो क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? The reason behind is अगर मैं अप्लाई करती हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सपोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास, बट द प्रॉब्लम इज वी हैव टू गो फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि बहुत आसान नहीं हो, मे बी कंडीशंस विल बी रिक्वायर्ड. सेम वे इफ़ आई एम गोइंग थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तब भी हमें मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस चीज़ को बॉयल करना पड़ेगा, एंड दैट विल टेक अ हाई साइड ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कंफर्टेबल हो, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट कैन ऑल्सो बी अ हायर साइड. तो यहाँ पे दिस मेथड इज़ द सिंपल वन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो पॉलीमर के जो मास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जब मास ज़्यादा होते हैं तो उनके पाई जो है काफ़ी कम होते हैं. तो पॉलीमर्स के केस में तो इट इज़ वेरी वेरी ईजिली अप्रोचेबल कि आप थोड़ा सा प्रेशर लगाकर मोलर मास को पता लगा सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. अब हम बात करते हैं एक अलग प्रोसेस की विच इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस ये थी मूवमेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. रिवर्स मीन्स ऑब्वियसली इट इज़ टेलिंग, द नेम इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि रिवर्स होगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ द वाटर will take place या movement of the solvent will take place from its lower concentration to its higher concentration. यूजुअली क्या होता था, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी मूव करेगा जहाँ पे पानी कम है, यानी अब क्या होने वाला है? द प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन. मतलब द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स will be from the lower concentration of the solvent to the higher concentration of the solvent. उल्टा पानी बहना शुरू होगा. क्यों होगा? द रीज़न इज़ you are going to add more pressure towards the solution side. यानी आप osmotic pressure से ज़्यादा pressure इस पे लगाएंगे so that the water particles will move from their lower concentration to higher concentration. यानी you are going to insist the particles of the solvent to move from their lower concentration to the higher concentration. तो ये पानी जो इधर जा रहा था, this is going to move from solution side to the solvent side, and what will happen then? This solution, जो आपका solution का concentration था, यहाँ पे if solvent particles are there like this suppose, है ना, और बहुत सारा है यहाँ पे water. Okay, now what will happen? The water part will move from this side to this side. So this part will be having water, that pure particles, and this solution
विल बी हैविंग मोर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होता जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. आई होप इट इज़ क्लियर. रिवर्स ऑस्मोसिस कैन बी अचीव्ड, या रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कैन बी डन बाय अप्लाइंग द प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस some amount of external pressure. More than osmotic pressure we are going to apply from the solution side, then only it is possible for the water to move from its lower concentration to its higher concentration. तो this is called reverse osmosis. अब क्या हुआ यहाँ पे, सारा प्योर पानी तो आ गया यहाँ पर, एंड यहाँ पे क्या रह गया, only the salt and some of the particles of the water also. ये जो पानी है which is having high amount of crystals or crystalloids, इसको बाहर निकाल दिया जाता है. एंड ये प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है, RO सिस्टम में. कहाँ पर, RO सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, विच इज़ यूज्ड एज अ प्योरीफायर इन योर होम. क्या करते हैं वहाँ पे, ये आपका टैंक है वेयर द लाइक आपका सॉल्ट वाटर इज़ फिल्ड. नाउ दिस इज़ द एरिया वेयर दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ बीइंग यूज्ड. आपके सिलेंडर लगे रहते हैं जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कवर्ड रहती है, जो कि थोड़े थोड़े दिन बाद एक्सचेंज करनी होती है. Why? Because the particles get entrapped there and they obstruct the flow of the water. तो जिसके क्या होगा, आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा. That is why we have to change the semi-permeable membrane meanwhile. And what is happening here? We are applying the pressure and this water is moving from its lower concentration to its higher concentration. Means salt की तरफ से, salty water की तरफ से कहाँ मूव कर रहा है, प्योर वाटर की तरफ. प्योर वाटर आप ले रहे हैं अपने यूज़ में, और जो सॉल्टी वाटर का कंसनट्रेशन जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, टू मेक द प्रोसेस अ कंटिन्यूस प्रोसेस वी हैव टू रिमूव दिस वाटर विच इज़ हैविंग हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट. तो ये कंटिन्यूसली निकलता रहता है. ऑल ऑफ यू हैव सीन कि RO में से पानी कंटिन्यूसली मूव आउट करता है. सो दिस इज़ द वाटर विच इज़ बीइंग रिमूव्ड during the process. This is the water which we are getting from the pure solvent side and the process is called रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम इट्स लोअर कंसनट्रेशन टू इट्स हायर कंसनट्रेशन. कैसे अचीव कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर तो केवल रोकेगा मूवमेंट को, है ना. ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर आप लगाएंगे तब ये मूवमेंट उल्टी डायरेक्शन में जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट osmosis and reverse osmosis, and the pressure which is required to stop the osmosis process is called osmotic pressure. As I told you, it is the best method to find out the molar mass of the bigger molecule like polymers, proteins, है ना. इनके लिए काफ़ी अच्छा है, because more is the molecular mass, less is the osmotic pressure required. तो आपका approachable pressure में आपका काम आसानी से हो सकता है. That is why this process is better process, considered to be as the better process than the elevation in the boiling point and the depression in the freezing point, where we need extremes of the temperatures. Okay, so I hope this video will help you to understand this process. Numerical can also come from this process, which will directly depend on pi v equals to nRT. So सीधे put the values and get the answer kind of questions will be asked to you. So I hope this video will help you to understand the process called reverse osmosis, osmotic pressure and diffusion. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.